Devendra sir, please begin. Okay, sir, it's live now. Yes. Okay, thank you. So, welcome you all to all the viewers and all the aspirants of UPSC examination. Recently, after too much uh, halla bolo and too much of protest from the aspirants, Supreme Court have finally said that UPSC will be conducted as on the aforesaid date of 4th of October. And today we'll be reviewing this examination. So, Competitive Examination Cell, Parul University, again welcomes you on behalf of Parul University for this unique initiative of ours. First of all, I would like to brief you about that what exactly is Competitive Examination Cell. Of course, Parul students must be aware of it, and many of the Barodians are also aware of it. So recently, we have initiated this cell in Parul University itself, where we are preparing the students along with their graduation, so that they need not to spare their precious years after their graduations to prepare exclusively and specifically for this examination onto the cost of their uh, peer pressure and parental pressure and then uh, their prolonged ages. So now they can prepare for this UPSC civil services examination in the university still and along with their graduation courses. And now we have also started inviting non-Parallel University students, which we have got massive response for. So now non-Parallel University students can also join exclusively for this course. It's a year-long course, which is a non-profit initiative. So you can be saved from the clutches of greedy coachings where you have to spend for the same coaching and at the cost for the cost of around 2 to 3 lakhs. And we have lots of flexibilities available here for the course, which are many, but as of now, I guess offline and online is the most crucial thing which students wanted to know. So yes, we are online too. So proceeding ahead with the major picture of what exactly this examination asked, this 4th of October examination, and seeing the trend have remained overall same for the past 3 years for the number of questions under the so-called categories of economy, geography, polity, history. So questions have varied into the same numbers. For economy, it has remained more over same into the same 25 to 30 questions. Geography, it's a most important part, and since 2013, the IS Indian Forest Services examination have also been merged with the UPSC prelims examination. So the weightage of this section have increased proportionately, and the questions are also in the range of 25 to 30. Like the previous years again. So polity, history, the trend has remained same, 15 to 20 questions they've asked. Science and tech same, and others which are international relation, international security, and such other questions. They were of like 5 to 6 questions were there. So yes, the trend have remained more over same, and the overall question paper I would rate it as bit uh, uh, in between the easy and moderate side. So why I do say it, because even in my classes I do inform all my students that the UPSC examination doesn't wants you to mug the current affairs incessantly without knowing the gist, without knowing the foundation of your course. So UPSC doesn't want it at all, and the coaching walas which might have pushed you. The many of students who have joined us today must have taken coaching here or there. So there they must have seen कि भाई आपको सोना भी उठना भी और जागना भी न्यूज़पेपर के साथ है. आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी याद नहीं किया, आपने इंडिया चाइना रिलेशन याद नहीं किया, आप तो फेल ही होगे. So such cramming we do not encourage. Our overall stresses onto the overall understanding of what exactly this exam preparation asks for. So this uh, even prior to the starting of this cell, many of the students who used to come to us for the discussion, they do term the UPSC examination as
the toughest one, and it's hard to crack because such rumors, such apprehensions have been developed कि एग्जाम तो 3 से 4 साल में हो ही नहीं सकता है. So to counter all those apprehensions, I have included here the screenshot of the syllabus, the notification from the of the UPSC, which verbatim says that this examination is only intended to assess overall intellectual traits. So this exam doesn't wants you to be some rocket scientist. It just wants you that being a bureaucrat, you have the empathy. You should have the empathy which is required as a bureaucrat for serving the people. I guess many of you must have started reading NCRTs, must have finished their NCRTs, but many of you must have overlooked the most important part of your NCRTs, which every book, every NCRT book consists of. That is a preface, a page before the preface, which is about Gandhi ji's talisman. जो गांधी जी के ताबीज की एक बात होती है उसमें, where Gandhi ji says that I am giving you a talisman. That he is talking. वो talisman की बात हम student के context में करते हैं. He says that I am giving you a talisman, and whenever you are going to take a step, just think of the most poorest or the most helpless person you have ever seen, and think of the step which you are going to take will going to harm him or will going to benefit him. If it is going to benefit him, then only you should be taking, then only you should take that step. So that is the basic foundation of your studies, which in rat race many of the students have forgotten. So if they have overlooked it too, though UPSC aspirant doesn't means to overlook it, but if they have overlooked it too, तो UPSC नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे फॉर्म भरते टाइम, तो आपने ये लाइन भी पढ़ ली तो आपको डरने की जरूरत कभी नहीं आएगी. So main examination is intended only to check your IQ and depth of understanding rather than your information and memory. तो आप रट्टा मारने को कितना भी मार लो, but unless you are understanding the topic, you are unable to clear this examination. And which we insist here that all our students shall understand that what UPSC asked for, and that only they should prepare. So again, they say that the aspirant should take a view on conflicting socio-economic goals, objectives, and demands. So overall, it is asking you to have an understanding or have a the thought of that whatever is going into the society, you should have a view, and you should be able to take step to such either stop such occurrences or boost such occurrences. So a just candidate, a wise candidate can never falter in this examination, even if he has prepared for 3 months, 4 months, 5 months, and even if somebody has prepared for 5 years, and if he is unable to understand this the rationale of UPSC exam, he won't be able to clear it for a decade. I can say so. So I want all of you to clear this examination. For that, whatever I've told, just keep it into your wisdom dictionary, and everything will be easier for you. So proceeding ahead with the economic section, we are discussing here questions from set A, because that was the set which UPSC website have shared. So keeping students comfort and to save them from going on to other coaching pages, we have taken the set UPSC which it has shared on the platform. So first question, it's a very easy question, though it's a conceptual question and it is contemporary question. तो UPSC it's a body जहाँ पे वो contemporary facts को मतलब इम्पोर्टेंस देती है. वो इस एग्जाम में आप सारे समझेंगे कि हाँ यूपीएससी क्यों कंटेम्प्रेरी चीजों को उठाती है and why it relates to its exams. And in the present scenario, everything what we were seeing is what RBI was doing is all about expansionist monetary policy. अब तक जो 20 लाख करोड़ they have injected, तो वो सारा expansionist monetary policy है. So even I have told in my classes that whatever in terms of your monetary policy tools, if you will cut those interest rates or if you will cut the SLR, then it will be expansionist monetary policy. So by going according to our teaching and according to our classes, whatever we have learned, so 1 and 3 goes with this. 1 and 3 are for expansionist monetary policy. So it is asking following would it not do.
सो ये दोनों तो कर रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, बट सेकंड वो नहीं कर रहा है. सो बी इज द आंसर एंड वेरी इजी क्वेश्चन. सो एंड इवन मेनी ऑफ योर जो मैं कोई न्यूज़पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें भी कई बार ये सारी टूल्स वर्बेटिमली दे हैव डिस्कस, तो वहां पे आप लोगों को और क्लैरिटी आई होगी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अगेन इट्स अ कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के टर्म्स में. पर्सिस्टेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर, पर्सिस्टेंट इंडिया चाइना ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर ही चल रहा है ऑलमोस्ट इन कंटेम्प्रेरी इफ यू विल सी द इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर. सो even in our class of balance of payments we have discussed कि all India have the trend have always remained of current account deficit. तो deficit जब आपका रहता है तो mostly it is less of exports and more of imports. So India scenario is like this. तो यहाँ पे अगर आप देखें options को तो यहाँ पे first, third and fourth आपका सही option है. Even if you have not learned in my classes, तो आपको simply यहाँ पे क्या करना था, आपको देखना था कि भाई इंडिया बेसिकली ये सारी चीजें जानता है कि हम लोग कम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो पहला आपको पता लग जाता है कि सही है. अब पहला यहाँ पे दो ही ऑप्शंस में है, दैट इज आइदर ए और आइदर डी. तो सिंपली यू हैव टू सी कि ए और डी में 2 आपका है कि नहीं है. तो 2 के लिए बस आप देखेंगे सिंपली, एंड 2 वाज अ वेरी इजी ऑप्शन टू एलिमिनेट. तो यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर. Now we are talking here contrary to what we have talked in first line. यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स हमारे लेस होते हैं इंपोर्ट से, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंपोर्ट हमारे घटे हैं. सो वी आर टॉकिंग कॉन्ट्ररी. तो किसी ने अगर बेसिक रीडिंग करी है न्यूज़पेपर में, he would have easily given answer to this question and would have rightly done it. So answer is 1, 3 and 4. Other options negated, और आप इतने के साथ ही इसको सॉल्व कर सकते थे. Now a very simple question, and in contemporary times this topic have been raised again and again by many newspapers कि हमारी cash to GDP जो है, that cash to GDP in our classes we have discussed, जो cash to GDP हमारा वो बढ़ रहा है. And why it is increasing? Because in the time of corona pandemic लोग डर रहे हैं कि भाई मैं कैश संभाल के रखता हूँ आने वाले टाइम के लिए. So like that the situation is going on. तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने उसी कंटेक्स्ट में दे हैव रिलेटेड, सॉरी, सो उसी टर्म में इन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है. इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. अगर किसी ने मॉनेटरी एग्रीगेट्स नहीं भी पढ़े हैं तो उसको सिर्फ सिंपली यहाँ पे ये जज करना है कि ये जो 1 लाख रुपए की बात कर रहा है कि मैंने अगर किसी बैंक में डाले और एकदम से निकाल लिए, सो व्हाट अफेक्ट it would have onto the economy. तो सिंपली यहाँ पे आप अगर मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़े तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स में कुछ नहीं आएगा. बट इवन इफ यू हैव नॉट रेड इट, तो आप एकदम से इकोनॉमी में पैसा डाल भी रहे हो और एकदम से निकाल लिया, सो इट वोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन टू आवर एग्रीगेट मनी सप्लाई, क्योंकि एकदम से आपने निकाल के वापस ले लिया तो क्या अफेक्ट करेगा? नथिंग. सो कोचिंग वाले आपको डराएंगे, आपको नोट्स दिखाएंगे कि मेरे इस नोट में से आया, मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये सॉल्यूशन कराया था. So all those things need not to go into such creepy things. Simple observation is required. So you could have easily answered it as D, to leave it unchanged. और ये सारे मैंने यहाँ पे even articles highlight किए हैं जो contemporary times में आए हुए newspapers में. Again a contemporary topic. So now my students can better correlate it. Why I insist on to reading only highlighted portion of daily shared newspapers. कि जो मैं highlight कर रहा हूँ आप उतना ही पढ़ लो, आपका time save होगा, and you can have some context, can relate it with the topics whatever we have covered into our classes. तो simple था बहुत ही question, but again जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे पूरा इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ना है, मुझे पूरा संजीव वर्मा पढ़ना है, again if you would have read any conventional book for economics, it wouldn't have sufficed because those books they are simply just putting on the data without seeing the implications for student. वो बस ऐड करते जा रहे हैं, हर बार इकोनॉमिक सर्वे आता है ऐड करते हैं, हर बार बजट आता है ऐड करते हैं. तो कंटेम्प्रेरी चीजें आपको याद रखनी है, मतलब व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग इन क्लासेस दैट ओनली यू हैव टू स्ट्रेस ऑन टू. तो यहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत वी हैव डिस्कस्ड इन क्लासेस, पंजाब एंड महाराष्ट्र क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, due to which government have brought one regulation. Firstly ordinance it had brought,
और सेकेंडली इट हैज ब्रॉट द रेगुलेशन. और यूपीएससी इज अ बॉडी which despite being close to hierarchy, they generally refrains from all the uh, what I would say all hot topics or all the topics which can have repercussions. तो यूपीएससी ऐसे कोई भी हॉट डिबेटेड टॉपिक्स को अपना पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाता है, बिकॉज इट डजंट वांट टू गेट हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ सम इंक्लाइंड पॉलिटिकल व्यू. सो वो क्लियर रहता है इन सारी चीजों से. तो आरबीआई का जो रेगुलेशन आया दैट इज ओनली फॉर मल्टी स्टेट्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फॉर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो जो बाकी की बची यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया. So while reading credit cooperative society, one thing we have studied hardly, they are meant to help the people amongst themselves and primarily they are meant to help agricultural credit societies. तो आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल था. अगर आपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सही से ऑब्जर्व किया है in the present contemporary times, so answer was B, 2 only, कि they are meant for this thing. और पहला अगर आप देखेंगे तो simply without reading anything you would have easily negated it, कि in terms of short term credit delivery, more credit are being given by DCCBs rather than scheduled commercial banks. Now scheduled commercial banks, they have huge money. तो उसके मुकाबले अगर हम DCCBs की बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा क्रेडिट देगी एग्रीकल्चर को, तो वो नहीं दे पाती है, बिकॉज scheduled commercial banks are also supposed to give loans to agriculture sector under priority sector lending. So there are some percentages there. और अगर मैं कहता हूँ वहाँ पे इवन सिंपल 10% भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आप एग्रीकल्चर को दे रहा हो, तो इट इज एक्सपोनेंशियली मोर देन एनी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, बिकॉज देयर मैंडेट इज स्मॉल एंड देयर मैंडेट इज लार्ज. तो इजीली नेगेटेड 1 ओनली बचा एग्रीकल्चर. तो दिस कुड हैव बीन इजीली आंसर्ड. नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगेन अ कंटेम्पररी टॉपिक, बिकॉज एनपीए की बात चल रही है प्रेजेंट टाइम में कि भाई okay, so queries we will take it later on. Please bear with us. So interest coverage ratio, NPA की बात चल रही थी, और NPA में I'll quicken hurriedly so that other team rest of my team also can take up other sections. So please bear with us. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनपीए के टर्म्स में इन्होंने कंटेम्पररी टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है. और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप सिंपल लाइन भी पढ़ रहे हैं तो वर्बैटिम में आपको बस मतलब समझ में आना चाहिए था, और अनिल अंबानी का एग्जांपल आपको समझ के बस ये क्वेश्चन का आंसर देना था. आंसर इज वेरी सिंपल, 1 and 2. थर्ड वन कुड हैव बीन नेगेटेड कि अगर आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी अगर आप नहीं चुका पा रहे हो, आप प्रिंसिपल तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे हो, देन यू आर नॉट able to take up the loan. And being a bureaucrat, जब आप आरबीआई को हेड करेंगे, जब आप सेबी को हेड करेंगे एज अ गवर्नर, एज अ चेयरमैन, तो वहां पे ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप अपनी टीम को बताएंगे तो योर मच बिगर क्राइसिस कैन बी अवॉइडेड. नाउ नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, यहाँ पे बात आ रही है. दिस क्वेश्चन आई वुड टर्म इट एज बिट टफ बिकॉज सच थिंग्स आर हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू टेक होल्ड ऑफ. तो ये कोई बुक में भी आपको जनरली नहीं मिलता है. And while teaching also we generally skip. I am very candid in accepting this कि while teaching जो ये छोटे छोटे differences हैं we generally ignore them, but while giving you extra material जहाँ पे हम highlight करते हैं कि आपको यही पढ़ना है, उन section में you can easily grab hold of these things. So non financial is those things जहाँ पे आपका finance related activity नहीं हो रही है. Finance means day to day cash or other things. So all these things are apart from your day to day cash dealing, housing loan, credit card and treasury bills, as I told you कि government bonds होते हैं. So all three are the answer. So D is the answer. So now hundi. So this while reading security markets we will be covering it. So this is a very basic term and easily could have been answered. And आपको इसके लिए history जानने की भी जरूरत नहीं थी. Even economics में हम लोग जब start करते हैं security market, हुंडी वहाँ कैसे न कैसे repeat करते हैं. So could have been easily answered. Bill of exchange. Now a bit factual question, but again have been asked in terms of the present scenario, so I would term it as contemporary, क्योंकि present time में companies को loan लेने के लिए RBI ने, though it has injected lots of money, but loan is still in terms of is short in terms of requirement. तो उस term में इन्होंने यहाँ पे question पूछा है.
सिंपली आपको ये सारे मतलब जानने थे और इसका आंसर करना था. सो बिट ऑफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड हेयर. सो एस्पिरेंट्स हु हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस कुड हैव इजीली क्रैक्ड इट. अदरवाइज आप ये डेफिनेशन पढ़ के कुड हैव इजीली सॉल्व. आंसर इज सी 1 and 3. सो 4 इज नॉट द आंसर. जहां नेम बता रहा है जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो से आ गया आर द इंटरेस्ट बियरिंग. सो जीरो से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो सिंपली यू कुड हैव अवॉइडेड 4. तो 4 अगर आपका अवॉइड होता है और 1 तो आपका आ ही रहा था और 3 आपका आ रहा था. सो 2 को नेगेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट. सो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. तो आप फैक्चुअल पढ़ के इसको कर सकते थे, बट अदरवाइज ऑल्सो आप 4 नेगेट करते तो यू कुड हैव बीन क्लोजर टू योर आंसर. Now, Kisan credit card scheme, again a contemporary topic and a much stressed contemporary topic because of Corona pandemic. This was in news जहाँ पे 89,000 crores of Kisan credit card इसके through government ने it gave it to farmers. So again credit card, अगर आप किसान credit card भी नहीं पता है और आपको पता है कि credit card किस काम के लिए आता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे. जैसे कि यहाँ हम देखें वर्किंग कैपिटल इज मेंट फॉर शॉर्ट टर्म यूसेज. तो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड आप देखते हैं 1 महीने की विंडो होती है, तो उससे ज्यादा आपको लोन देते भी नहीं क्रेडिट कार्ड वाले. तो वर्किंग कैप, तो आपको सिंपली समझना है कि जो भी शॉर्ट टर्म यूसेजेस हैं ऑफ क्रेडिट कार्ड, दोज ओनली कैन बी डेजिग्नेटेड अंडर एनी क्रेडिट कार्ड, रादर इट इज किसान क्रेडिट कार्ड और कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड. तो शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल आ गया. हार्वेस्टर ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, दिस कुड हैव बीन नेगेटेड इजीली. फार्म कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, यस इट इज अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट. सो 1 3 आर द आंसर. सो 1 और 3 हो गया, तो आपका सिंपली बी निकल के आ रहा है, कुड हैव बीन इजीली आंसर. along with the budget, many times you discuss this, FRBM is the answer, so need not to give some speech onto this. Blockchain, a very contemporary topic and a must topic, and all the aspirants who are undergoing some sort of preparation for this examination. Recently Supreme Court ने नेगेट किया था आरबीआई का फॉर्मल डिसीजन, जहां पे उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना बैन किया था, बट सुप्रीम कोर्ट हैज नेगेटेड इट. और जहां पे भी ऐसी बॉडीज आती हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई, सेबी, such topics are must to cover under your current affairs, under your current contemporary topics. तो ब्लॉकचेन आपको कैसे भी पढ़ना था. 2 बिट टेक्निकल चीजें यहाँ पे पूछी हैं. पब्लिक लेजर होता है, बट सिंपली अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी पता होता, सिंपली यू वुड हैव एनी आइडिया अबाउट 1 आंसर, तो आप नेगेट कर सकते थे. आई वुड टेल यू हाउ. डी मैंने आंसर बताया 1 and 3. सो 2 इज नॉट द आंसर. तो 2 हम देखेंगे. Structure and design of blockchain is that all the data in it are about cryptocurrency only. आपने पढ़ा होगा भाई सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें कई सारे पजल्स ढूंढते हैं, मैथ प्रॉब्लम होती हैं. तो क्रिप्टो करेंसी का डाटा तो नहीं रहता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको सॉल्व करना होता है. अगर आपको इतना पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाते. इवन इफ अगर आप 2 पे नहीं पहुंचते, 3rd पे जाते, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. यस, विदाउट एनीबॉडीज परमिशन वी कैन डू एनीथिंग. सो 3 भी अगर आपको पता होता तो एक ही ऑप्शन है डी, you could have easily answered it. So till now we have seen UPSC doesn't ask you rocket science, only a basic understanding which can be done with some sort of help which we are providing here under competitive exams help. So West Texas Intermediate Cell oil, a very contemporary topic, सब किसी को पता होना चाहिए. A crude oil, जो negative territory में prices गए थे recently, all must have known it under your contemporary topic. FDI, much हल्ला बोलो as we have formally discussed first one question कि ट्रेड के बारे में. तो FDI ट्रेड का ही पार्ट है, BOP का पार्ट है. तो BOP आपने अच्छे से पढ़ा, you could have easily answered. B is the answer. FDI is nothing but non-debt creating capital flow. So news में भी FDI काफी रहा है. So FDI is a much contemporary topic. Gold tranche, again a contemporary topic, I would say so. Why? Because many of the countries under present scenario, they didn't have money, so they approached IMF. And IMF reserve tranche is one of the methodology to distribute loan. And even forex reserve जो हमारा 540 billion के पार लग गया है, that also can be related to this question. वो कैसे बढ़ा है, क्योंकि हमारा forex reserve also consists of reserve tranche. So this is also the answer. So D, credit system granted by IMF to its members. Now another financial crisis happen in near future.
तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रेजेंट सिनेरियो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस वाला ही हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज सिचुएशन इज ऑफ स्टैगफ्लेशन, एंड इवन इफ यू विल कंपेयर इट विद 1929 ग्रेट डिप्रेशन, it was also about stagflation. So in that context they were checking your conceptual knowledge, so not depending on short term foreign borrowings. Yes, this is one of the prime agenda. So one is the easy answer, or others could have been easily negated अगर आपको थोड़ी भी knowledge है BOP के बारे में, और if you are a daily reader of whatever we are highlighting into our newspapers, तो भी easily आपको ये आंसर आ सकता था. Now trims, again bit tough question because they have asked सेकेंड ऑप्शन इन स्पेसिफिक वाज बिट डीपर टू कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि ट्रिम्स जो है सिर्फ गुड्स से डील करता है, और हमने सारे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अभी डिस्कवर नहीं किए हमारी क्लासेस में. सो स्टूडेंट्स कैन relate it when we will be discovering reading it. So bit conceptual question, bit tough question. So some knowledge would have been required. अगर आपको नहीं भी पता, you could have skipped it and would have gone ahead. तो यहाँ पे C आंसर था. बट आपको नहीं भी पता है तो प्रीलिम्स आपको टॉप नहीं करना है, आपको ओवरऑल टॉप करना है. तो एक दो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो वोंट इम्पैक्ट योर हेल्थ. एंड इट वाज अ कंटेम्पररी टॉपिक, क्योंकि WTO ने ये ट्रिम्स के ऊपर काफी सारी गाइडलाइंस आई थी बीच में भी, एंड इवन WTO इज डिफंक्ट नाउ बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स इंटरवेंशंस. सो इन दैट कंटेक्स्ट यू कुड हैव रेड इट, बट अगेन मैं कोचिंग वालों की तरह एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा कि आपको आना ही चाहिए था. सच थिंग्स कैन बी इग्नोर्ड बाय स्टूडेंट्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. So yes, again this is a question which have been asked in contemporary times, but इन्होंने क्या है कि थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है. So bit moderate, not tough though. तो हमको सिंपली पता है कि टेक्सटाइल इज बांग्लादेश एंड बांग्लादेश प्रोन रीजन है. सो इजीली कुड हैव बीन आंसर्ड अगर आपको ये चीज पता है कि बांग्लादेश वाला आंसर है, तो 2 आपको पता है तो 2 आप यहाँ कर देंगे, बट 2 दो और ऑप्शंस में भी था, बट यू कुड हैव इग्नोर्ड इट बाय रीडिंग अदर ऑप्शंस. क्योंकि यूपीएससी जनरली क्या करता है, जो ऑप्शन उसको गलत बताने होते हैं स्टूडेंट्स को, वो वहीं पे एक हिंट दे देता है. व्हाट इट डज इज इट extrapolates that the stress of that particular point. जैसे यहाँ पे in the last 5 years नेपाल has been largest, तो largest जब यहाँ इन्होंने लगा दिया और वो भी नेपाल के साथ लगा दिया, so this some doubt it gives. So by that you can comprehend it. और दूसरा पहला ऑप्शन अगर आप देखते consistently increase, तो ऐसे वर्ड जहां पे यूज हो रहे हैं और जहां पे कोई फिगर नहीं है, देयर यू शुड हैव अ हिंट कि भाई अब कुछ गड़बड़ है. सो लाइक दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड द सॉल्यूशन. वेरी इजी क्वेश्चन. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुड हैव बीन इजीली आंसर्ड. सी अगेन won't give any prizes to answer this question. Very easy question. MSP जिसने भी पढ़ा है और कंटेम्पररी टॉपिक है, सबको पढ़ना ही था. whatever we have highlighted, जिसने भी वो पढ़ा होगा would have easily answered कि ये सारे ही इसके options हैं. In the case of cereals, pulses, MSP, again contemporary topic, सारी लड़ाई MSP के पीछे चल रही है अभी. So a bit conceptual question, और even in our microeconomics class I have related it कि भाई प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, ऐसा नहीं है कि आपका प्राइस वहां तक नहीं जाएगा, MSP का प्राइस जाएगा, बट गवर्नमेंट हैव डन सम इंटरवेंशंस so that price shall not increase till that stage. So in the case of MSP is fixed in any state at a level which the market price will never rise. rise करेगा, but उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि भाई कुछ गाइडलाइंस बना रखे हैं कि उतना FCI खरीद लेगा, फिर फूड कूपन दे देगा अंडर सम स्कीम्स, so that way it controls the price. But डिमांड सप्लाई के लिए MSP कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है. So 2 is not the answer, and 1 again is unlimited. No, MSP is not unlimited. Some percentage is there, और unlimited कर देंगे तो सभी किसान वही बोएंगे. So basic observation, basic understanding. So as we have seen in first slide कि आपको बस simple IQ होना चाहिए. Again this question is out of the league question kind of, because ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली पूछता नहीं, और पूछता है तो वो आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए पूछता है कि आपका अगर एज पे आप आ रहे हो और ये आपने क्वेश्चन कर दिया और आपकी एज पे कट ऑफ आ रही है, तो आप ये क्वेश्चन करके नेगेटिव चले जाओगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द लीग. सो ऐसे क्वेश्चंस आई जनरली सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम. बट जहां पे फैक्ट नहीं है, आपको ज्यादा लगाना नहीं है. सिंपल आंसर वाज बी. आई कैन प्रूव माय पॉइंट ओवर हियर, बट नीड नॉट टू अटेंड दिस क्वेश्चन if you are unable to comprehend it in terms of this thing, answer this thing. So
B 3 and 4. Rural areas growth in non-farm economy increase, growth rate in rural employment decrease. तो 1991 economic liberalization अगर आप basic observation लगाएंगे, again if you have studied something then only you could have applied it. So B is the answer. फैक्ट फिगर इसके लिए आपको किसी में जाने की जरूरत नहीं, जो कोचिंग वाले आपको आंसर शीट दे रहे हैं वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. सिंपली आपको ये देखना है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है, जैसे रिफॉर्म्स आए तो ऐसा नहीं कि एकदम से वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. एंड बाय दैट टाइम व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केम, मेजॉरिटी ऑफ आवर इकोनॉमी वाज इनटू एग्रीकल्चर, और वहां पे प्रोडक्टिविटी always remains less because many people are sowing or harvesting a small land as is the practice in India. So productivity हमेशा less रहती है. तो by basic observation you could have negated it. Percentage share of rural areas in workforce steadily increase. So एकदम से तो नहीं बढ़ेगा, जैसे ही रिफॉर्म आए तो ये एकदम से ही बात कर रहा है, तो this could have also been negated. तो जहाँ पे आपका 1 and 2 चला गया तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे नेगेट हो गए, A और B. तो बी और सी में अगर आप देखेंगे तो 4 आपको चेक करना है कि 4 सही है कि नहीं. तो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था कि भाई एम्प्लॉयमेंट रूरल की डिक्रीज हो गई थी, कि जो करते आ रहे थे वो तो कर ही रहे थे. सो इट डिडंट गेट डिक्रीज. सो लाइक दैट यू कुड हैव शेड योर नेगेटिव आंसर्स. नाउ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, इन्फ्लेशन and a contemporary topic, so no prizes for guessing this answer. Simple answer A, 1 and 2. MP lads, a very contemporary topic. Government has recently suspended this scheme for 2 years for using the fund which have been granted to MP lads for corona pandemic effect measures. So very contemporary topic. और अगर किसी ने MP lads वाला वो आर्टिकल पढ़ा है तो easily could have answered कि ये फंड जो है ड्यूरेबल एसेट्स के लिए मिलता है. यस, इट इज करेक्ट. Portion of MP's fund SC/ST के लिए जाता है. This is also correct. MP-led funds are sanctioned on yearly basis and unused funds cannot be carried forward. No, this is not correct because these are not lapsable. जो आपका बच गया है वो नेक्स्ट ईयर भी आप यूज कर सकते हो. So like this. So आपका आंसर डी आ रहा था इस तरीके से, 3 नेगेट हो गया, बाकी सारे आपके ऑप्शंस हैं. So MP-led, this was the news. They have suspended it. Now I invite our geography sir, Noman sir, to take on from here. Okay, thank you very much, Devendra sir, for this economic section. Now we will continue with the geography section. So just wait for a minute. I'm presenting my screen in front of you. Okay, so see इस बार जो ज्योग्राफी का पोर्शंस था सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है एग्रीकल्चर क्वेश्चंस. इस बार ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के साथ एग्रीकल्चर क्वेश्चंस का प्रपोजल ज्यादा था. बट अभी जैसे आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं कि बिल्कुल इजी थे, जिसे हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं है, अदरवाइज हमारा नेगेटिव मार्किंग की तरफ हम जा सकते हैं. So the first question was very easy, like consider the following minerals. Okay, and they ask about we need to identify that out of these 4 minerals, which minerals can be designated as a major minerals. So the same question was asked in the previous year UPSC question paper. This sillimanite was in the part of the previous last year mains paper. So if you have referred the previous year UPSC question paper, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने प्रीवियस ईयर की यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर रिफर करना है. अगर आपने रिफर किए होंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा हाँ कि सिलिमिनाइट आपका जो है वो मेजर मिनरल्स में, मतलब आपका 4th नंबर का ऑप्शन तो आएगा. तो आप वहां से इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, 1 2 and 1 3. नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद द 4 ओनली, 2 3 and the 4 ओनली. सो आउट ऑफ दिस आंसर इज 2 3 and the 4. सो ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि नाउ you need to also refer the UPSC previous year questions paper, prelims as well as the mains. तो वहां से भी कुछ questions solve हो सकते हैं. Now next question, whenever I took my first lecture in geography, I mentioned that you always refer atlas. जो भी कोई भी अगर न्यूज आपका करंट में है तो उसको आपको रिफर करना है with the help of map. Last year UPSC ने 3 questions पूछे थे, लोकेशन बेस्ड और मैप बेस्ड. इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चंस है लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड. तो यू नीड टू रिफर द एटलस. और व्हाई द सियाचिन ग्लेशियर इज आस्क्ड बाय द यूपीएससी, बिकॉज़ इट वाज करंटली इन न्यूज़.
और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कितनी बार सियाचिन ग्लेशियर्स विजिट करते हैं साल में, ठीक है। तो हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी लोकेशंस आपसे पूछ लेंगे। जो लोकेशंस आपका करंटली न्यूज में होगा वही लोकेशंस आपको पूछते, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका परफेक्ट लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा था, सिंपल क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हो एग्जाम में तो आप कभी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको गलत भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते। यही क्वेश्चंस है जो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर करवाएंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड, ऑप्शन इज डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। या मैप में भी आपको दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर्स नुब्रा वैली के नॉर्थ में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं जाने देने। ओके सी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस था, बट अगर जो लोग डेली करंट अफेयर या डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं फॉर देम इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, ओशियंस टेम्परेचर बेटर प्रिडिक्ट इंडियन समर मॉनसून। उसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है, जनवरी टू मार्च, दिस इज बिकॉज ओएमटी एनालाइज्ड बाय द मेजरिंग ओशियन थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। सी, अगर क्वेश्चंस का सेकंड स्टेटमेंट लिखोगे, OMT collected during January March can be used to assessing the weather। डायरेक्ट क्वेश्चंस का स्टेटमेंट वहां से लिया गया है, डायरेक्ट करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस है। मीन योर ऑप्शंस 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ फॉर ऑप्शन 1, सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, एसएसटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू मिलीमीटर। अगर ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, 50 to 100 मीटर। इट इज मेंशन्ड दैट डेप्थ ऑफ 50 to 100 मीटर। In the fifth line, you can mention the depth of 50 to 100 meter. Same statement यूपीएससी ने कॉपी किया है, सिर्फ डेप्थ चेंज किया है। 50 to 100 मीटर की जगह पे उन्होंने किया 129 मीटर। की वजह से ये ऑप्शंस गलत हो जाता है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो नाउ आंसर इज ओनली 2। सी, मतलब यूपीएससी ने डायरेक्ट न्यूज़पेपर से स्टेटमेंट्स उठा के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कोई बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट करंट अफेयर से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट लेवल इज डिफिकल्ट बिकॉज यू आल्सो नीड टू रिमेंबर द डेटा। और यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि व्हेनेवर दे आस्किंग अबाउट द एग्जैक्ट डेटा, आउट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग, मतलब वो इनकरेक्ट ही होते हैं। इस बार भी आप देख सकते हो 129 मीटर एग्जैक्ट डेटा पूछा है, ऑप्शंस गलत है, ठीक है। तो ओनली 2 इज द आंसर। और इसका सोर्स द हिंदू पेपर का आर्टिकल्स। ओके, नाउ ये जेट स्ट्रीम अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर किसी ने एनसीईआरटी में जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, इजीली सोल्व कर पाएगा वो, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर, ये चीज भी करंट अफेयर में था, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। उसका सेकंड लाइन आप पढ़ोगे, जेट स्ट्रीम शिप टू नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदर्न में ही होगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। नाउ इट लेफ्ट विद 2 and 3 ओनली, ऑर्डर 2। ओके, तो आंसर इसका 2 है। दूसरा ऑप्शन भी साइक्लोन से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन सराउंडिंग। अब क्या होगा कि जैसे साइक्लोन में आप अंदर की तरफ जाओगे, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर के ऊपर इनवर्स इफेक्ट होगा। इसकी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन 3 गलत है। और मैंने जैसे बताया कि ऑलवेज जो चीज आपका करंट अफेयर में रहता है वहां से लोकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आता ही है। यू कैन सी द मैकोंग रिवर फ्लो इन साउथ चाइना सी आएगा, अंडमान सी नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1 गलत है। तो आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, तो आपको आप ऑप्शन बी ऑप्शन सी में पता है, तीसरा तो देखना ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन 4 सही है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप 50-50 तो ला ही दोगे। फिर आपके पास अगर 2 ऑप्शंस बच रहे हैं तो आप इजीली उससे कुछ भी से उसको आप सोल्व कर पाओगे, तो प्रोबेबिलिटी आपका सोल्व करने का कम हो जाता है। तो देखो ये भी करंट अफेयर में था, अभी 29 अप्रैल 2020 का आर्टिकल है, स्टडी ऑन चाइना डैम्स। उसमें ये चीज बताया गया था कि न्यू स्टडी हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज डैम ऑन द मेकोंग रिवर। तो ये सेम चीज, ये सेम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में था, सेम क्वेश्चंस आपका ये करंट अफेयर में था। अभी तक हमने जो देखा, जितनी भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए सभी करंट अफेयर से है। तो ये चीज जब मैंने पहला लेक्चर लिया था क्लास में, तब भी मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, लोकेशंस आती है, उनका आपको लोकेशंस देखना जरूरी है।
ठीक है, तो ये चीज आपको खास देखना जरूरी है। ओके, ये सिंपल शंकर आईएएस से क्वेश्चंस पूछा गया था, एनवायरमेंट से। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। ठीक है, शेड्यूल इसके बारे में पूछा गया है, एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो शंकर आईएएस में दिया हुआ है ये चीज। ओके, अब एलिफेंट्स के बारे में पूछा गया था, तो लास्ट में अगर इसका फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देख लो, अगर आपने एलिफेंट का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट है वो केरला में नहीं है, कर्नाटका में। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे? केरला में नहीं है, कर्नाटका में। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका बी एंड डी दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके, नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद द टू ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, तो यू नीड टू सिलेक्ट एनी वन। ओके, तो यहाँ पे मेरे बाजू में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो उसके ऊपर से आप आंसर इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, सेम एक बर्ड के बारे में पूछा गया था, कुछ नेम दिए गए थे, ये क्या है? बर्ड है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, बट सेम चीज देखो 2020 जनवरी 23 में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था कि उसके ऊपर से आंसर पता चल जाता कि आंसर इज बर्ड। ओके, आंसर इज बर्ड। ओके, so it was also easy questions which was asked in UPSC based on the current affair. ठीक है, now same thing, बारासिंगा कान्हा नेशनल पार्क, it was currently is in news। ठीक है, इसकी वजह से then this particular अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was it currently is in news। ओके, उसके बेस पे ये आया था, तो उसके बेस पे से आंसर मिल जाता था हमें। और ये क्या पूछा गया था? मस्क डियर, तो उसका दूसरा नाम है हिमालय मस्क डियर, क्योंकि वो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे ये मानस नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हिमालय में लोकेटेड नहीं है, गंगोत्री एंड अस्कोट जो है वो हिमालय में लोकेटेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा आपको आंसर। इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इट वाज आल्सो इन करंट इन न्यूज। तो जितने भी आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं इनडायरेक्टली वो करंट अफेयर से ही है। ठीक है, स्टैटिक और करंट को मिक्स करके पूछा गया है। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये हमारा कावेरी बेसिन के बारे में पूछा गया था, और सेम चीज आपका करंट अफेयर में है। और ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी पूछा था, तो अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर अगर आप रिफर करोगे तो आपको लोकेशंस मिल जाएंगे। ठीक, एंड दिस बेंजिन, अब यहाँ पे भी ये चीज पूछी गई है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, सिंपल है 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, अब देखो वापिस से जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी में कभी कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस आते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया 36% वो डेटा गलत है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन है इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। नाउ यू हैव जस्ट लेफ्ट विद ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, और ऑप्शन 2 ओनली। ओके, तो वहां से आप आंसर दे पाओगे इजीली। तो सी पहले आपको एलिमिनेट कर देना, आपको पता है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इजीली आप एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, देन बायोफ्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जब इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में लॉन्च की गई थी, उसके अंदर ये जितने भी नाम है वो सब कुछ दिए गए। आंसर इज 1 3 1 2 एंड लाइक 4 5 है हमारा। ये जो बीच के दो नहीं है, हॉर्स ग्राम एंड रोटन हॉर्स ग्राम और डैमेज व्हीट ग्रेन नहीं है, हम उसे बायोफ्यूल में यूज करते। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है, इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में क्या बताया गया, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे। अगर सिर्फ बायोफ्यूल पूछते हैं तो सब आंसर सही हो जाते, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, उसके तहत कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें देखना है। ठीक है, सेम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था। ओके, और बायोचार के बारे में पूछा गया है। ओके, और ज्यादातर एक ये आपको पता ही होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बट यहाँ पे इस बार यूपीएससी में था राजा वही बनेगा जो किसान होगा। मीन्स मतलब एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस आए थे, बट ऐसा नहीं है, अगर हमें ऐसा नहीं है कि इस बार एग्रीकल्चर में 7 से 8 क्वेश्चंस पूछ ले तो नेक्स्ट टाइम पूरा दिन हमें एग्रीकल्चर ही पढ़ते रहना है, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर कर लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, समझ लो। आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे उसको, इस बार अगर ये क्वेश्चन है तो नेक्स्ट ईयर भी वही क्वेश्चन होंगे। तो हमें सिर्फ हमारा बेस जो क्लियर करना है वही। अगर मैं यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन अभी एग्रीकल्चर के आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मतलब आपको पता चलेगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस भी है, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमें लीव कर देने, उसे अटेम्प्ट ही नहीं करने।
क्योंकि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, हमें एक्यूरेसी के साथ 70-75 क्वेश्चन बहुत हो गए हमारे लिए, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी ओकेशनल क्लास 11 से क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर का, ये फर्टिगेशन किया है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर पता है तो ही अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, ठीक है। सेम ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये जो ग्रीन ग्राम है उसका ऑप्शन 2 आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। देखो, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, नहीं, इंडिया के अंदर इतनी सारी पल्सेस होती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ आपका ग्रीन ग्राम ही 50% हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन 2 अगर गलत है तो बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद द ऑप्शन ए ओनली, वन ओनली। तो बाय द वे ऑफ एलिमिनेशन मेथड you can easily you can easily solve this question. Okay, now this question was also asked in your mention in NCERT, so directly you can solve with the help of NCERT books. Okay, but this is not a case that in we cannot solve this agriculture questions. It was very difficult, but few questions were very easy and you can easily solve with the help of NCERT book. Okay, these questions were difficult. At least you no need to try to attempt this question. I mentioned the answer, but no need to try to attempt these questions. Otherwise, there is chances for the negative marking. Okay, this question was easy to moderate level. You can easily find these terms, zero tillage and the carbon sequestration in the Sankar IAS chapter number 21 and 24. So if you remember at the time, you can recall at the time of exam, then it is very easy for you to solve this question. Okay, now this was from the current affair. Vertical farming was in the current affair in the Hindu paper. So option 4 in Kurukshetra October 2019, crop diversification was in the current affair. So by the help of this, you can easily solve. Okay, now I will hand over to Parth sir. See, this time the polity paper or the polity portion was very easy. You can easily attempt the number of questions from the polity, while the few questions from the ancient and medieval India was unpredictable. So if you are well prepared for the polity subject, then you can score very good marks in that particular portion. So for now, the polity portion, I'm inviting our polity faculty, Mr. Parth Gold. Good afternoon, everyone. So now onwards, we are going to discuss about the polity. Okay. So this time, मतलब इस बार बहुत easy paper था और easy to moderate kind of हम कह सकते हैं कि जो paper आया था polity का. And there are direct questions which was asked from the like Lakshmikant. अगर आपने लक्ष्मीकांत वाला book पढ़ा Indian polity का, तो easily आप polity के questions attempt कर सकते हैं सारे बहुत ही आसानी से. पर थोड़ा सा उनके पीछे conceptual था कि आपको concept अगर आपको clear है उस चीज का, articles थोड़े बहुत याद हैं, so you can easily like able to do the questions of the Indian polity in this UPSC 2020 prelims exam. Okay. Now the first question is जो आया था अभी पूछा गया है आधार कार्ड के बारे में था. Consider the following statements that Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefits founded out of the Consolidated Fund of India. So इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो हमें बताने, ठीक है. तो जो पहला है आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months, ये गलत है. वो 6 month किया था सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो उसमें बताया गया था कि 6 month तक वो वैलिड है. उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन, यानी किसी भी प्राइवेट कंपनी से वो हमारा डेटा शेयर नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जजमेंट दिया था उसके अंदर. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. देन आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नहीं, आधार कार्ड बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. नाउ द फोर्थ इज आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की जो संचित निधि है उसमें से जो स्कीम्स जो बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है. हाँ जरूरी है. हम सबको पता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अगर किसी भी तरह का बेनिफिट चाहिए या सब्सिडी चाहिए तो उनको आधार कार्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है. सो द आंसर इज ऑप्शन 2 and 4 आर द करेक्ट वन. ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा, यानी राज्यसभा का किस मामले के अंदर इक्वल पावर है लोकसभा के साथ.
ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इस केस में जो राज्यसभा है उसके पास ज्यादा पावर है लोकसभा से, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट होता है हमारा। देन सेकंड इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए यस, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए अमेंडमेंट लाने के लिए, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एज ऑफ नाउ, हम लेके चलते हैं। देन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि राज्यसभा का रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट से लेकर कोई लेना देना नहीं है, इस केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में इलेक्टेड लोग आते हैं एमपीज वगैरह और उनकी फिर सरकार बनती है, तो थर्ड ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। देन मेकिंग कट मोशंस, तो कट मोशंस बेसिकली बजट से रिलेटेड है, बजट सेशन में आता है कि उसमें कितना कट करना है वो सब, तो वो सब भी लोकसभा में आता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मेजोरिटी है दोनों हाउसेस में, राज्यसभा एंड लोकसभा में इक्वल मेजोरिटी होगी तभी वो अमेंडमेंट होगा, तो सो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। एंड यू कैन रेफर द लक्ष्मीकांत बुक फॉर द चैप्टर 10 फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। Now the next question is, which one of the following categories of the fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? अगर आपने fundamental rights पढ़ा है तो जो हमारा fundamental right है फर्स्ट वाला, right to equality, जो डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर, तो आर्टिकल 17 जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, कि abolition of untouchability. So it is very simple question. So answer for that particular question is D, the right to equality, and you can reference this Lakshmikant chapter 7. Now the next question is, in India separation of judiciary from the executive is enjoined by, तो ये क्लियरली हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके आर्टिकल 50 में क्लियरली मेंशन है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, सेपरेट करता है उसको, तो आंसर इज वेरी इजी, बी, अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड द रेफरेंस इज द बुक अगेन, द इंडियन पॉलिटी बाय मिस्टर एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर नंबर 8, यू कैन रेफर दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, एक संवैधानिक सरकार हम किसको बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, देन पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। तो पहले हमको इसका फंडा पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मानती हो, यानी जिसके ऊपर लॉ है, लॉ हैज द सुप्रीम पावर, वो सरकार जो लॉ के अंदर काम कर रही है वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। ओके, जब ऐसी गवर्नमेंट कोई होती है जो लॉ के अंदर काम करती है तो उसकी पावर क्या होती है? लिमिटेड होती है। सो द ऑप्शन इज डी, द लिमिटेड गवर्नमेंट। Now the next question is, other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948? Okay, अब इसमें हमारे को 3 ऑप्शन दिए गए, preamble, DPSP and fundamental duties. Okay, so जो DPSP है उसमें तो clearly mention किया गया है fundamental rights हमारे, कि इसके अंदर हमारे जो ह्यूमन राइट्स है हमारे वो ये होने चाहिए, एक आम नागरिक के पास ये अधिकार होने चाहिए। बट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ट्रिकी है, जो अगर सिर्फ पूछता कि किस में उसको डिक्लेयर किया गया, अगर इट वुड बी लाइक दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको डिक्लेयर किया गया है, सो ऑप्शन वुड बी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे उसकी जो फीलिंग है, जो उसका सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट प्रियम्बल में भी हो रहा है। जब प्रियम्बल की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइन आता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी समाज के या सोसाइटी के हर एक तबके के लोग को इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो वहां पर उसका फील जो ह्यूमन राइट्स का वो रिफ्लेक्ट होता है। देन प्रियम्बल में ही लाइन आती है कि एवरी पर्सन हैज सर्टेन इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रिटी के साथ रहना चाहिए इंडिया के अंदर, तो वहां पर भी उसका जो ह्यूमन राइट्स है उसका जो आइडिया है वो रिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी आर्टिकल 29 जहां पर आता है वहां पर भी ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन में रिफ्लेक्ट करने को बोला है तो हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। Option number D is the correct answer for that question. That is 1, 2 and 3. Now the next question is, in India, legal services authorities provide free legal services to which of the following type of citizen? तो ये जो है बेसिकली जनरली हमारे आर्टिकल में भी आया था, और ये नालसा जो है, जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज एजेंसी है, उसको ये उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था कि किस तरह से किन लोगों को हम लोग लीगल एड देंगे, उस बारे में है। तो जो पहला ऑप्शन है पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹1 लाख, ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में उसमें बताया गया है, नालसा ने डिक्लेयर किया था। देन ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹2 लाख, ये भी उसमें बताया गया है।
डिक्लेयर किया गया है, फिर क्या क्या हमारी गाइडलाइंस है, कौन कौन से सेक्शन है, उसके टोटल 30 सेक्शन है, उसमें से ये 2 सेक्शन उसमें क्लियरली मेंशन किए गए हैं उसकी गाइडलाइन में, नालसा की गाइडलाइन में। देन मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹3 लाख, तो उस गाइडलाइन में बैकवर्ड क्लास का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, इट इज रॉन्ग। देन ऑल सीनियर सिटीजन्स, इसमें सारे सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें कुछ ही सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया है जिनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर कंप्लीटली रॉन्ग, सो ऑप्शन 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So the next question in the context of India, which of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? यानी अगर हम नौकरशाही की बात करें, जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, आईएएस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी आता है, तो उसके कंटेक्स्ट में कौन सी लाइन उनके लिए सही है? सो इट इज एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं बताता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसको एक्सपेंशन है, बिल्कुल नहीं। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ये एक एजेंसी है जो हमारी जो फेडरलिज्म है, जो हमारे संघीय ढांचा है हमारे संविधान का, उसको स्ट्रेंथन करता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसने फेडरल सिस्टम तो अपनाया है, बट इट हैज अ यूनिटरी फीचर्स आल्सो समटाइम्स व्हेन इन केस ऑफ सम स्पेशल प्रोविजंस। सो जनरली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है हम उसको बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म, तो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। देन an agency for facilitating political stability and economic growth, so bureaucracy does not deal with the political stability and economic growth. So the option last D is an agency for the implementation of public policy, so it is quite similar to that, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। कैसे? जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और उस पॉलिसी को लागू कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो काम ब्यूरोक्रेसी का है। चाहे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, उनका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, वो लॉ को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट उनको उसको इम्प्लीमेंट कराना है क्योंकि वो उनका काम है। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट ब्यूरोक्रेसी एज एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। Then the next question is, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ है इंडिया का, उसमें कौन सा पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है? तो जो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत चैप्टर 8 व्हिच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट मींस राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी राज्य कैसी गाइडलाइंस बनाएगा वहां के लोगों को रहने के लिए, ताकि उनका बेनिफिट हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है? तो वो सारी चीजें कहां डिफाइन की गई हैं? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, दैट इज अ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए। देन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? तो 4 ऑप्शंस दिए गए कि हमारा जो प्रिएम्बल है, प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसके संदर्भ में कौन सी चीज सही है? सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, क्लियर? सो पहला जब था, then not a part of the constitution and has no legal effect either. Third option is a part of the constitution and has the same legal effect as any other part of the Indian constitution. And the option D is a part of the constitution but has no legal effect independently of the other parts. तो जब बेरूबारी केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि भाई जो हमारा प्रिएम्बल है, जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट जब 1976 में जब चेंज हुआ था, केशवानंद भारती केस आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि जो प्रिएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इंडिपेंडेंटली हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिएम्बल में चीजें डिफाइन की गई हैं, बेसिकली उसका कंटेक्स्ट लेके, उसका रेफरेंस लेके हम अदर पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी है कि जो प्रिएम्बल है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the provisions contained in part 4th of the constitution of India. जब part 4th की बात कर रहे हैं तो that means it is clearly talking about the DPSP, Directive Principles of State Policy. तो उसके रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। सो DPSP this shall be enforceable by the courts, नहीं, कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसमें हमारे जो ह्यूमन राइट्स डिफाइन किए गए हैं DPSP में, तो आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि भाई हमारे ये राइट्स का हनन हो रहा है, इनको वायोलेशन हो रहा है, तो प्लीज आप इनको लागू करवाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 37 है उसमें क्लियरली मेंशन किया,
आर्टिकल 37-38 उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है डीपीएसपी में अंदर कि जो डीपीएसपी के जो राइट्स हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. Third option is the principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. Yes, क्योंकि इसमें जो laws बताए गए हैं, जो principles बताए गए हैं, वो states को directions देता है कि आपको इस तरह से laws बनाने हैं ताकि उससे जो state में जो लोग रह रहे हैं उनका upliftment हो सके, उनका betterment हो सके of the people of the society. Okay, so option 2 and 3 are the correct answer. So option D is the right answer for this question. Now the next question is a parliamentary system of government is one in which, यानी जो parliamentary form of government है उसमें उसके context में कौन सा statement सही है. So पहला ऑप्शन है all political parties in the parliament are represented in the government. नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट बन रही है, अगर इंडिया की अगर बात करें हम as of now, तो अगर कोई गवर्नमेंट बन रही है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका पार्ट नहीं हो सकती, कुछ उसमें अपोजिशन में भी पार्टीज हो सकती है. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 75 में डिक्लेयर किया गया है कि जो भी गवर्नमेंट बन रही है इट हैज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 75 में ये चीज मेंशन की गई, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है. देन ऑप्शन सी की बात करते हैं. द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. अब पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन का, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज राइट. हम पर गवर्नमेंट नहीं चुनते, हम एमपीज चुनते हैं और वो एमपीज अपनी सरकार बनाते हैं जिनकी मेजोरिटी होती है. ठीक है, बट उनको लोग जिन्होंने चुना है वो रिमूव नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी भी गलत है. देन ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड टर्म उसको पूरा करना पड़ेगा, वो रिजॉल्व हो सकता है, हटाई जा सकती है. तो इस केस में ऑप्शन बी जो है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट और वही द राइट आंसर है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement. The Constitution of India defines the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Okay, so हमारा जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया. उसके अंदर क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की गई हैं. बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो प्रियम्बल की बात करते हैं, तो उसमें कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. सो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है. Then second option is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. हम जब बात करते हैं इंडियन सिटीजन्स की लिबर्टीज की, प्रिजर्व उनके आइडियाज की, ठीक है, तो जब लिबर्टीज की बात करें तो हम उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है. और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है हमारा, तो हम कोर्ट जा सकते हैं. उसके लिए जुडिशियल रिव्यू के लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज बी 2 ओनली. Now consider the following statements regarding the constitution and all that. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of the state. ये डिफाइन किया गया हमारे आर्टिकल 164 में, 164 क्लॉज डी में, कि कोई भी व्यक्ति जो है, पर्सन है, वो एलिजिबल है मिनिस्टर बनने के लिए. ठीक है. Then second option is, according to the Representation of People Act 1951, a person convicted of criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. तो ये जो हमारा जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. यानी मान लीजिए अगर आपको 3 साल की सजा हुई तो आप 3 साल की सजा पहले पूरी करेंगे, then 6 years, टोटल 9 years. After 9 years, you will be able to compete the election. आपको परमानेंटली वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है. ठीक है. तब ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली कंफ्लिक्ट, बेसिकली यहाँ पर क्या चीज है ऑप्शन 1 को लेकर, कि वहां पे जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर, तो हमको वोट करने का जो राइट है वो 18 की एज में मिल जाता है, पर हम मिनिस्टर बनने के लिए उसके लिए 25 इयर्स की एज मैंडेटरी है. 25 साल की उम्र में आप उसका इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. तो इस केस में अब या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या ऑप्शन डी, नाइदर 1 और नॉट 2. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है. अगर यूपीएससी अगर उसका माइक्रो एनालिसिस करता है तो ऑप्शन डी सही हो सकता है, नाइदर 1
और नॉट टू, यानी दोनों ऑप्शंस गलत हैं। पर अगर जनरल देखा जाए तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट अगर हम बात करें तो। Now consider the following statements. The President of India can summon a session of Parliament at such place as he thinks fit. Yes, जरूरी नहीं है कि हमारे जो संसद का जो सदन सेशन जो चल रहा है, सत्र चल रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर ही हो। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कहीं पे भी हो सकता है, और ये आर्टिकल 85 में डिफाइन किया गया है। चाहे तो वो राष्ट्रपति भवन में भी बुला सकते हैं, किसी भी जगह बुला के सेशन शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 तो सही है उसके मामले में। देन अगर ऑप्शन 2 की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। नहीं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे 3 सत्र होने चाहिए। ऑल्दो ये परंपरा बन गई, चलता आ रहा है कि मानसून सत्र होगा, बजट सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, यानी विंटर सेशन होगा, बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और यह कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि तीनों सेशंस होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है सेकंड, वो गलत है। Then there is a no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. तो ऐसा भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने टाइम तक का हमारा सेशन चलना चाहिए। तो ऑप्शन 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो लुकिंग टू द पॉलिटी पार्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, जो इजी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे, अब 9 to 10 questions were very easy, and moderate question, like easy to moderate, there were 5 questions, and the difficult questions will be 1 in the paper. Okay, so now I am going to handing over this session to the Mr. Harish Devjani sir. We will deal with the art and culture part of the polity UPSC paper. Harish sir, please. Thank you, sir. Thank you so much. Am I audible? Yes, sir. You are clearly audible. Okay. Okay, fine. Thank you so much. Let us talk about history, art, and culture, and what all things have been asked in UPSC Prelims 2020 from this portion. So, as correctly mentioned by Noman sir, that this year polity was a bit easy, and history, art, and culture was a difficult thing to attempt. If I talk about the overall question, a number of questions from this portion, including history, art, and culture, there were almost 19 out of 100, and that constitutes of the 1/5 of the portion. So a good portion has been asked from this part, and it is a good blend of easy and hard questions. So easy, moderate, hard, all the questions have been asked. And one good thing which which we can see and which we can observe over here is both conceptual as well as theoretical questions have been asked this year. So earlier when we think of like history, या हम हिस्ट्री की बात करते हैं या हिस्ट्री के बारे में हम सोचते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी. But this year, if you know the concepts or if you know the basic thing about that particular event, you are able to answer that. Right? आप उस चीज का आंसर अच्छी तरह कर सकते हैं. A good attempt would be 10 to 11 questions out of these 19 questions. So अगर कोई 10-11 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है अच्छी तरह, so that can be considered as a good questions, because a good amount of questions were from the hard sections also. Talking about the different sections of history, ancient, medieval, and modern. So 8 questions from ancient history, 9 questions from modern history. Modern history तो हमेशा के लिए एक फेवरेट पार्ट रहा है. इस साल जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन रहा है, वो एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा पूछा गया है. तो एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑल टुगेदर 8 क्वेश्चंस. Medieval history, only 2 questions are there, and that too can be neglected, right? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि that was properly medieval history, but yes, you can classify them as a part of medieval history of India. If I talk about difficulty level, almost 8 questions were very easy. 8 क्वेश्चन बहुत easy थे अटेम्प्ट करने के लिए. 3 can be easy to moderate, and 8 questions were really hard questions, difficult questions, which as a aspirant you can think of skipping, because जरूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज पता होगी हमको. So that we'll see which questions were hard. Starting with the questions, the first one, with reference to the history of India, consider the following pairs. Now ये एक चीज है, ये एक ट्रेंड है जो काफी कॉमन हो चुका है यूपीएससी में, जैसे कि हमको कुछ ना कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके मतलब हमको पता होने चाहिए. जैसे कि औरंग है, बनिया है, मिरासदार है. So let us talk about them. Orang basically it is a Persian term which is used for warehouse, एक जगह जहाँ पर सामान रखा जा सके, तो उसके लिए औरंग वर्ड यूज किया जाता था. And here it has been mentioned as in charge of treasury of state, so it is obviously incorrect. Second is बनिया. बनिया जो टर्म है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था. They were intermediaries for European merchants in Bengal, and yes, they were Indian agent to East India Company, so that is correct. Option number 2 is correct.
and Mirasidar under the Rothwari systems, they were the sole proprietor of land. उनको रेवेन्यू सिस्टम दे दिया, उनको रेवेन्यू पेयर माना जाता था स्टेट का, कि जो भी रेवेन्यू आएगा वो लोग देंगे. सो if you consider it, 1 is incorrect, 2 and 3 are correct, so the correct answer would be answer B. However, if you see, Orang is a new term over here. Bania, ठीक है, आप लोग understand कर सकते हो. Mirasidar, it has been in the current news, but Orang is a term which is no. Please wait for a while, as sir has some network issues. He will be back in a while. I'm extremely sorry, there was some network glitch. We'll continue with the same portion. Yes. So, as you're talking about this thing, yes, Orang की हम बात कर रहे थे. Orang एक नया term है. So, due to this term, I can consider this question as to be a bit of hard question. And Mirasidar जो चीज है, that has been recently in the news. That has been recently in the news. जब TTD, that is तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो issue हुआ था, जिसमें chief priest को उन्होंने रिटायरमेंट के लिए बोल दिया था, एंड जो प्रीस्ट थे उन्होंने वापस एलिगेशंस लगाए थे मैनेजमेंट के ऊपर कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ करप्शन. तो इस चीज के ऊपर ये चीज काफी ज्यादा आई थी, और इसमें जो हेरेडिटरी जो रखवाले थे, जो मंदिर संभालते थे, उनको ये मंदिर का सौंप दिया गया था पूरा, और वहां पर ये टर्म काफी ज्यादा फेमस हुआ था. राइट. सो अगेन दिस इज समहाउ रिलेटेड टू एज वेल. Next is about the Buddhism. Buddhism and Jainism has been good topic and good thing which has been continuously asked by UPSC again and again. Now this question, if I talk about this question deals with the sects of Buddhism, और ऐसे total 18 sects हैं. So 18 sects, 18 Buddhist school को याद रखना, it is kind of impossible thing. So due to this particular point, I can consider this question as to be a hard question. But if you remember some of the things about second Buddhist council जो वैशाली में हुई थी,
तो वहां पर जो आचार्यवधींस थे और स्थविरावधींस थे उनका डिवीजन हो चुका था और महासंघिका के नाम पे एक बुद्धिस्ट स्कूल चालू हुआ था। अब जो महासंघिका जो थे दे फोरशैडोड द डेवलपमेंट ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। So Sarvidhans they belong to Mahayana Buddhism. We cannot say that. Lokavardhin sect was offshoot of Mahasanghika. Again, यहाँ पर sects की बात आ रही है. So if you look into it, only the first one is incorrect. The Lokataravadhin or जो deification of Buddha by Mahasanghikas, they fostered the Mahayana Buddhism. That is correct. So the correct answer would be 2 and 3. And again, this question I'll consider this question as to be the hard question, and we don't expect to be to an aspirant to be attempting this question. ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये attempt करना हो. This question can be skipped. Right. Next question is about industrial revolution, the impact of industrial revolution in the first half of 19th century. Now ये एक एकदम simple question है because you have to get to the gist of this question. The first half of 19th century talks about 1800 to 1850s. Right. इस चीज की हम बात कर रहे हैं and यहाँ पर बात हो रही है कि उसका इफेक्ट क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ठीक है, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, सो उसकी वजह से दिस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, दैट इज करेक्ट। द मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। नॉट ऐसा कुछ नहीं था, ये जो मशीन्स आई थी वो आई थी 1860s 1870s में, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी एज वेल। रेलवे लाइंस की अगर मैं बात करूं, रेलवे लाइंस वर लेड इन 1853, द फर्स्ट रेलवे लाइन। सो वो सेकंड हाफ आ जाता है 19th सेंचुरी का। एंड heavy duties were imposed on imports of British manufacturers. Exactly इसका उल्टा हुआ था, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी ड्यूटीज कम कर दी गई थी, तो जो ट्रेड हो गया था वो काफी इजी हो चुका था। सो द आंसर वुड बी ए, दैट वाज द करेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया। राइट, सो दिस इज बेसिकली एन इजी क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाते हो तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। द सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी अवर पास 3, चैप्टर नंबर 6, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, पेज नंबर 71 एंड 72, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और वहां से पूरा क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा सेक्ट है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनफैक्ट जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हमारे रेगुलरली, वहां पर हम एक चीज को काफी ज्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आपको कंटेम्पररी किंग्स पता होने चाहिए। सो ऑन वन पार्ट ऑफ इंडिया इफ वन किंग इज रूलिंग, वी शुड नो व्हाट इज हु इज रूलिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। राइट, तो ये चीज पता होनी चाहिए और वहां से एक क्वेश्चन काफी अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो पहले थे, जो सबसे पहले थे वो थे महेंद्र वर्मन, ये पल्लवा किंग थे। दे वर इन द अर्लियर 7th सेंचुरी, दैट इज इन फ्रॉम 600 टू 630 एडी। उसके बाद आए थे गोपाल, पाल डायनेस्टी के 750s टू 770s एडी, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी इन बंगाल, जो कन्नौज स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट किंगडम था, एक डायनेस्टी। देन थे मिहिर भोजा, वो जो गुर्जर प्रतिहार के थे, and they were there in 836 to 885 AD. ये जब गुर्जर प्रतिहार का जो पीक टाइम चल रहा था उस टाइम की बात है। And then परंतक चोला, they were in the early 10th century. They ruled for 48 years and they annexed the Pandyas. तो पंड्यास को annexation करने के लिए इनको काफी ज्यादा जाना जाता है। So if you go with the correct order will be 2, 4, 1, 3. Right? That is सबसे पहले महेंद्र वर्मन, then गोपाला 4, then मिहिर भोज number 1, and then Parantak Chola number 3. अब इस चीज की भी अगर मैं बात करूं, this can be a moderate question because year याद रखना it's kind of a difficult thing, but those who study it properly and those who study in the form of chronology, they can easily remember the years, right? And Parantak Chola, he has been in the news since last 6 months, काफी ज्यादा बार न्यूज में आया है क्योंकि चोला इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं, वरायू टेम्पल है वहां से बहुत सारे चोला इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं, एंड हिंदू में काफी बार इनके आए हुए हैं कि हमको ये इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, तो उनमें इनका नाम था। एंड यू नो दिस गिफ्ट वाज मेड बाय क्वीन इन ईयर 911 CE ड्यूरिंग द रूल ऑफ परंतका चोला। राइट, सो ये इंस्क्रिप्शन जो अभी मिला है लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है देवेंद्र सर ने, सो मुझे नहीं लगता मुझे वापस डिस्कस करने की जरूरत है। इट्स अबाउट हुंडी। हुंडी, द करेक्ट आंसर इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आंसर इज सी। सिंपल क्वेश्चन है। So that is some mistake. It is a simple question. It is an easy question, not a moderate one. But I know अगर इकोनॉमिक्स को काफी अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको ये चीज तो आती ही होगी। The next one is about देशर काथा. Now this is a typical question which has been asked about देशर काथा, सखाराम गणेश जोस्कर। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल थे एंड इन्होंने बुक लिखी थी देशर काथा, एंड इस बुक को 5 साल तक पब्लिश करने दिया था। ऑलमोस्ट 10,000 कॉपीज इनकी पब्लिश हो चुकी थी। एंड उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये तो हमारे जितने भी कच्चे चिट्ठे हैं उनको खोल रहे हैं
हमारे बारे में सब कुछ बता रहे हैं, उनके जो कॉलोनियल रूल था उसके बारे में बता रहे हैं, तो उस बुक को वापस से बैन कर दिया गया था। तो लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और काफी ज्यादा एक जो इंडियन वो था फ्रीडम मूवमेंट था उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिल चुकी थी। तो उस चीज के लिए ये बुक काफी ज्यादा फेमस हुई थी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर्स, इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट hypnotic conquest of mind, that is correct. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folks, that is also correct. The use of desh by Diyoskar was in the specific context of the region of Bengal. अब ये जो देशर कथा में जो देश वर्ड यूज किया गया है, ये बंगाल के लिए था या पूरे इंडिया के लिए था, that is still not clear, right? So although the answer has been mentioned that 1 and 2, there is still a confusion between 1 and 2, the A, and the last option 1, 2 and 3, जिसमें देश का जो यूज है वो सिर्फ बंगाल के लिए किया गया है या पूरे इंडिया के लिए किया गया है, that is not still clear. So let's wait for the final answer please by UPSC and that will get clear, right? But this question can be considered as a hard question if you don't know about Sakharam Ganesh Diyoskar, right? The next is Gandhi Irwin Pact. I will call it a very easy question. जिसको भी गांधी इरविन पैक्ट और उसके आगे पीछे की चीजें पता होंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होगा, तो you can answer this question very easily. Right. The first point is invitation to Congress to part in round table conference. सही ऑप्शन है। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज के लिए वो एग्रीड भी हो चुके थे और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। The withdrawal of ordinance promulgated in connection with the civil disobedience movement. Right. So civil disobedience movement उस टाइम पे चल रहा था और उनको बंद करने के लिए बोला गया था कि INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनको इस चीज को विड्रॉ करना है। The third thing is acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police access. Now this is not incorrect. ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, पुलिस की कुछ बात की नहीं गई थी उस टाइम पे, so that third option is incorrect. And fourth is release of only those prisoners who were not in the charge of violence. अब जो गांधी इरविन पैक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे भगत सिंह से रिलेटेड है, तो जिनको भगत सिंह के बारे में या उनकी स्टोरी के बारे में पता होगा तो वो भी इस चीज का आंसर कर सकते हैं। that the release was only for those prisoners who were not in charge with violence, and जो भगत सिंह थे उनके ऊपर चार्ज लगा था वायलेंस का, इसलिए उनको रिलीज नहीं किया था। So this point is also correct. So if you talk about the answer will be first, second and fourth. जो third one है into the police access, that is not correct. I'll consider this question to be a very easy question and easy to attempt. The next is Vitthal Vidwansak. ये जो first monthly journal थी, that is for the untouchable people, right? So ये किसने publish की थी? Now चार option है, भीमराव, if I start with the last option first, भीमराव रामजी अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले एंड गोपाल बाबा वलंगर। अब ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू अनटचेबल पीपल्स, द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। अब इसमें अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मंथली जर्नल है, सो दिस इज रिलेटेड टू समवेयर 1800 एंड 1850s, जब अनटचेबल पीपल के ऊपर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, एंड उस टाइम पे मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अम्बेडकर ये तो थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दे कैन बी एलिमिनेटेड इजीली। ज्योतिबा फूले एंड गोपाल बाबा वलंगर, इन दोनों के में से आप एक आंसर चूज करना है। लेकिन ज्योतिबा फूले की अगर मैं बात करूं, ही वाज अ फेमस पर्सनैलिटी एंड उनकी जितनी भी बुक्स थी, जितनी मैगजीन्स थी, वो तो, उनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ही वाज टू मच इन्वॉल्व इन दी सोशल कॉजेस। तो उनमें से किसी का भी नाम विठल विध्वंसक था नहीं, तो यू कैन कम टू द डायरेक्ट आंसर, दैट इज गोपाल बाबा वलंगर, right? So the answer is Gopal Baba Walangar, and I can consider this question to be a very easy question. The next one is Kulawapa and Dronwapa. So as I told you, ये काफी ट्रेंड है यूपीएससी का, जब वो टर्म्स देते हैं और उन टर्म्स के मतलब पूछते हैं। एंड ओवर हियर वापा मींस लैंड्स, so Kulawapa and Dronwapa, it is somewhere related to lands and it is basically the measurement of land. So the answer is A, and I'll consider this question as to be hard questions because यहाँ पर आपको क्रैम करना पड़ता है कि कौन सा वर्ड है, उसका क्या मीनिंग होता है। So this can be considered as a hard question. The next one is, okay, this is a very interesting question about the inscription. और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। I'm not going to read the entire inscription, but it is about the inscription, और ऐसा लिखा गया है कि who among the following rulers advise his subjects through this inscription, किसने इस सब्जेक्ट्स के थ्रू अपने सब्जेक्ट्स को इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू एडवाइस किया था। तो देयर वाज ओनली वन किंग जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस का सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है, सबसे ज्यादा अपने सब्जेक्ट्स के लिए। कृष्ण देव राय, यू कैन नॉट कंसीडर देम, वो उनका सोशल और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा रोल था। हर्षवर्धन आल्सो ही वाज इन्वॉल्वड इन असेंबलीज, मास असेंबलीज। समुद्र गुप्ता, द इंडियन नेपोलियन, राइट? सो उनका तो कुछ था नहीं इंस्क्रिप्शन में, सो द आंसर करेक्टली वुड बी द Ashoka, A. It is a very easy question and very easy to attempt. The next one is related to the cultural history of India.
right? So about the paramitas. Now paramitas is again a term that you should know if we are talking about the cultural history, and it is again related to Buddhism. यहाँ पर वापस बुद्धिज्म की बात की. Paramita stands for the perfection, right? So it is usually used along with the Dasa Paramita, the 10 perfection, and Pragya Paramita, that is perfection of wisdom, right? So अगर मैं perfections की बात करूँ, there is only one option which is dealing with perfection, that is C. So the answer would be C. I'll call this question as a hard question. Again, you should know about paramitas which are used in Buddhism specifically. The next question is about Rakhma Bhai case of 1884. Now this is again a good question which has been asked, और Rakhma Bhai's case recently काफी ज़्यादा एक न्यूज़ में रहा है. I will talk about it why. केस ऐसा था कि रखमा भाई की छोटी उम्र में शादी हो चुकी थी, एंड बड़ी उम्र जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने केस किया था कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस मैरिज, क्योंकि उसमें उनका कुछ वो नहीं था, उसका कोई बिल नहीं था, तो इन्होंने मना कर दिया था एक्सेप्ट करने के लिए. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने देखा था कि हिंदू लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, स्टेटमेंट या कुछ क्लॉज नहीं है जो चाइल्ड मैरिज की बात करे. तो उस टाइम पे 1891 में करेक्ट मी, यस 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, जब 12 इयर्स कर दिया था मिनिमम एज फॉर मैरिज. तो ये एक एक्ट आया था, और उससे 7 साल पहले जो रखमा भाई केस आया था उसकी वजह से ये एक्ट आया था. सो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 3. दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी अटेम्प्टेड यूजिंग एलिमिनेशन. द थिंग इज 1884 की बात हो रही है, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है that can be neglected because women's right to gain education, it was too popular in the first half of 19th century, right? So 1850s 1840s के आसपास जब सोशल रिफॉर्म हो रहे थे तो बहुत सारे सोशलिस्ट जो थे वो इस चीज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे कि वुमेन जो है उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही चला जाएगा. करेक्ट ऑप्शन बिकम्स 2 and 3, दैट इज आंसर बी, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट क्वेश्चन. बट अगर आपका इंट्यूशन सही है, इफ यू कैन एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन इजीली, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, Rukma Bhai Rawat, she was also in the news जब एक गूगल ने एक डूडल दिया था उनके नाम के ऊपर, एंड उसके बाद से उनकी पूरी स्टोरी आई थी कि she was a doctor एंड कैसे उन्होंने ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेकर आई थी. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग वन कैन फोकस. जो गूगल डूडल आ रहे हैं उसमें भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सो आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन, एंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आंसर होगा. What was the reason of decline of indigo cultivation? Yes, ऐसा हो सकता है कि some people might get confused over here कि peasants resistant to oppressive conduct of planters, but it was not true. There was no resistance. Yes, resistance था लेकिन दूसरी चीजों के लिए था. Oppressive conduct of planters ये reason नहीं था. Yes, second reason is the correct one. It's unprofitability in the world market because of new inventions. So indigo जो था उसका natural dye की तरह यूज किया जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे मार्केट में सिंथेटिक डाइज आ चुके थे, एंड सिंथेटिक डाइज जैसे ही आए थे तो इंडिगो जो थे उनकी डिमांड कम हो चुकी थी, इसलिए इतना प्रॉफिट वर्ल्ड मार्केट में मिल नहीं रहा था. तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, एंड आई कैन कॉल दिस क्वेश्चन एज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज पूरा एनसीईआरटी में से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो इफ दोज हु हैव read एनसीईआरटी एज वेल एज बिपिन चंद्रा, दे माइट बी एबल टू आंसर इट. द नेक्स्ट इज अबाउट द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता. तो उसका रीजन क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज जिसको भी थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में, तो ये कॉलेज जो हुआ था 1800 में इसको फाउंड किया गया था बाय विलिस्ली, जो उस टाइम के लॉर्ड विलिस्ली थे, जो उस टाइम के गवर्नर थे, उन्होंने फाउंड किया था इसको. और रीजन यही था कि उनको इंडिया उस 1800 का जो टाइम था वहाँ पे उनको इंडिया के अंदर आना था, इंडिया के अंदर आने की कोशिश करनी थी. तो वो इंडिया के कल्चर को सीखना चाहते थे और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लेकर आना चाहते थे. सो दे हैव टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस in such a way that they should be able to understand the culture, tradition, law and administration of India. So इसलिए उन्होंने ये कॉलेज खोला था ताकि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर, ब्रिटिश सिविलियंस को यहाँ पर ट्रेन किया जा सके. The correct answer over here would be answer D, to train the British civilians for administrative purpose in India. And this is a very easy question. The next one is about the Ulgulan, that is the Great Tumult. तो ये कौन सी हिस्ट्री, कौन से इवेंट को डिस्क्राइब करता है? So this is related to बिरसा मुंडा मूवमेंट, राइट. सो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट जो 1899 और 1900 में हुआ था. एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सोशल चैप्टर नंबर 8, सोशल मूवमेंट्स ऑफ आवर पास्ट 3, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है. द आंसर वुड बी 3. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिरसा मुंडा रिवॉल्ट और बिरसा मुंडा मूवमेंट, सो आई कैन कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज अ हार्ड फॉर यू. एंड यू नो, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो या आपने प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे हो, so you can still make a guess about Birsa Muंडा movement.
Why this is there in UPSC exam? Because Birsa Munda Jayanti celebration. Yes, this was one of the plea by tribal communities. Tribal communities जो थी उन्होंने एक plea की थी कि उनको जो बिरसा मुंडा जयंती है वो मनानी है on 15th November. तो इसके लिए it was the 144th birthday of Birsa Munda last year. So उसके बाद से ये काफी ज्यादा वापस एक बार न्यूज में आया था. The next is about the literatures of ancient India, the literatures of scholars of ancient India. ठीक है, तो 4 हमें नाम दिए हुए थे और हमको बताना था कि कौन से कोड में था. सो ये चीज हम जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, ये हम क्लास में अभी पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हमें ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सो दे कैन इजीली आंसर इट. टॉकिंग अबाउट पनिनी वाज अ स्कॉलर. इट वाज जो इंडियन ग्रामर को जो संस्कृत ग्रामर है उसको डेवलप करने में पनिनी का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ही लिव्ड इन द 4th century AD, राइट. 4th century AD में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे. एंड if he is whether he is associated with Pushyamitra Sunga or not. पुष्यमित्र शुंगा की अगर मैं बात करूं तो वो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को खत्म किया था. मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे बृहद्रथ, उनको खत्म करके इन्होंने शुंगा डायनेस्टी चालू की थी. अब मौर्य डायनेस्टी जो खत्म हुई थी दैट वाज बिफोर क्राइस्ट, और पनिनी जो आए थे दैट वाज 4th century आफ्टर एना डोमिनी, राइट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट. टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, अमर सिम्हा, whether he is associated with हर्षवर्धन. हर्षवर्धन जो थे वो 6th century में आए थे. अमर सिन्हा जो थे वो थे चंद्रगुप्ता II के कोर्ट, right, so that is also not matching. And Kalidasa, it is associated with Chandragupta II, that is absolutely correct. So third option जो है वो correct है. Kalidas as well as Amar Simha, ये दोनों Chandragupta II के कोर्ट में थे. So the correct answer would be the third one only, Kalidasa. He is associated with Chandragupta II court, and that can be considered as an easy question. The next is about the cultural history of India, जिसमें 3 वर्ड दिए हुए हैं, परिव्रजका, श्रमण एंड उपासक. So upasak is an easy word, right, lay follower of Buddhism that you can consider. The Shraman is a priest with high status, that is also correct. And the Parivrajaka is a renunciant and wanderer. So अगर इनके आप मीनिंग देखने जाते हो तो परिव्रजका is someone who is seeking the truth. तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं and they are seeking the truth. That is related to परिव्रजका. Shraman is someone who is doing labor. Shraman जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, but it is related, if I talk about cultural history, it is related to the priest or who is performing something religious. So it is related to priest with high status. And upasak, it is a lay follower of Buddhism. It is an attendant in Sanskrit or Pali word. So the answer would be 1, 2, and 3. All the options are correct. And this question can be considered as a hard question if you don't know the meaning of Parivrajaka and Shraman. The next, again, I call this question as a difficult question if you don't know about the towns like Ganshala, Kadura, and Chaul. So Gupta dynasty में ये towns थे, Ganshala, Kadura, and Chaul, and ऐसा पूछा था कि ये these towns were well known for. So I found this resource where you can understand that these towns, they were somewhere related to the ports handling foreign trade. So the correct answer would be A. However, I consider this question as to be hard question because there are lots and lots of names and it's difficult to remember all the names. The next question would be was about the places, famous places and their present state. So कौन से correct option हो सकते हैं? अब इसमें से एक option तो obviously correct था, that is Girinagar. Girinagar, Girvan related to Gujarat. So option number 3 was correct. Now for rest of the options you can use elimination. Fourth, Thaneshwar. Thaneshwar is related to Thaneshwar. Thaneshwar at present is in Haryana, right? Haryana Thaneshwar. So fourth one is wrong. The Dwar Samudra, Maharashtra. Now Dwar Samudra is related to Karnataka, not Maharashtra, because Dwar Samudra का नाम ही ऐसा है कि समुद्र का द्वार है, so it is related to Karnataka. Bhilsa is an ancient name of Vidisha. Vidisha का ancient name है Bhilsa, and it is in Madhya Pradesh only. So first and third would be the correct answer. So option number A becomes the correct answer. And I'll call it moderate. If you can use your intuition and eliminate the option, you can answer this question. So that's it from my side. Thank you. So thank you all the experts of competitive examination cell. I won't take much time now as already we are beyond the time what we have mentioned there in the poster. So this was all about the examination, UPSC examination, and all who are aspiring to crack this examination can contact us at competitive examination cell, Parallel University.
any queries, anything regarding prelims, mains, choosing optional, anything, you can contact us anytime. Our number is, if you can note it down, 93289 It's already mentioned onto the links which you must have got through any of your peers. So you're welcome if you are interested to join us to prepare for this coveted exam of India. And thank you all for your participation.